سوال: تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب: مسلمان۔ سوال: مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے؟ یا تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ جواب: اسلام۔ سوال: اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب: اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے، ہم ان کی امت میں ہیں۔ سوال: ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب: عرب کے دیش میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال: آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ جواب: آپ کے والد یعنی پتا جی کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ سوال: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے درجے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درجے میں اور سب پیغمبروں سے بڑے ہیں، اور اللہ کی ساری مخلوق سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر کہاں رہے؟ جواب: 53 سال کی عمر تک آپ شہر مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ چلے گئے اور 10 سال تک وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سوال: اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ سوال: قرآن کتنے دنوں میں اترا؟ جواب: 23 سال میں۔ سوال: قرآن مجید کس طرح اترتا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلوا کر لکھوا لیتے تھے۔ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امی تھے۔ سوال: امی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اللہ نے آپ کو تمام دنیا سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال: کیا بغیر مانے اور مطلب سمجھے زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: فرشتے کون ہیں؟ جواب: فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ مرد ہے نہ عورت، جن کاموں پر خدا نے لگا دیا انہی میں لگے رہتے ہیں۔ سوال: فرشتے کتنے ہیں؟ جواب: فرشتوں کی گنتی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں، اور ان میں سے 4 فرشتے خاص اور مشہور ہیں۔ سوال: خاص اور مشہور 4 فرشتے کون کون سے ہیں؟ جواب: نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو خدا تعالیٰ کی کتابیں اور حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ 2 حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کے دن سور یعنی ایک طرح کا باجا پھونکیں گے۔ نمبر 3 حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر لگے ہیں۔ 4 حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی جان نکالنے پر لگے ہیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت کتابیں پیغمبروں پر اتری، مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ 4 کتابیں مشہور ہیں: 1 توریت، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، 2 زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، 3 انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، 4 قرآن مجید، جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال: رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب:
रसूल खुदा ताला के बंदे और इंसान होते हैं। खुदा ताला उन्हें अपने बंदों तक हुक्म पहुंचाने के लिए भेजता है। वे सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, गुनाह नहीं करते, खुदा ताला के हुक्म से मौजिज़े दिखाते हैं। खुदा ताला के पैगाम पूरे पूरे पहुंचा देते हैं, उनमें कमी पेशी नहीं करते, न किसी पैगाम को छुपाते हैं। सवाल, नबी के क्या मायने हैं? जवाब, नबी के भी यही मायने हैं कि वह खुदा ताला के बंदे और इंसान होते हैं, खुदा ताला के हुक्म बंदों तक पहुंचाते हैं, सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते, गुनाह नहीं करते, खुदा ताला के हुक्मों में कमी ज्यादती नहीं करते, किसी हुक्म को नहीं छुपाते। सवाल, नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? जवाब, नबी और रसूल में थोड़ा सा फ़र्क वह यह है कि रसूल तो उस पैगंबर को कहते हैं जिसको नई शरीयत और किताब दी गई हो, और नबी हर पैगंबर को कहते हैं चाहे उसे नई शरीयत और किताब दी गई हो या ना दी गई हो, बल्कि वह पहली शरीयत और किताब के ताबे हो। सवाल, क्या आदमी अपनी कोशिश और इबादत से नबी बन सकता है? जवाब, नहीं, बल्कि जिसे खुदा ताला नबी बनाए वही नबी बनता है। मतलब यह है कि नबी और रसूल बनने में आदमी की कोशिश और इरादे को दखल नहीं, खुदा ताला की तरफ से यह दर्जा दिया जाता है। सवाल, रसूल और नबी कितने हैं? जवाब, दुनिया में बहुत से रसूल और नबी आए, लेकिन उनकी ठीक ठीक गिनती खुदा ताला ही जानता है। हमें तुम्हें इसी तरह ईमान लाना चाहिए कि खुदा ताला ने जितने रसूल भेजे हम उन सबको हक पर और रसूल मानते हैं। सवाल, सबसे पहले पैगंबर कौन है? जवाब, सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। सवाल, सबसे पिछले पैगंबर कौन है? जवाब, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या कोई पैगंबर आएगा या नहीं? जवाब, नहीं, क्योंकि पैगंबरी और नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। आपके बाद जो आदमी पैगंबरी का दावा करे वह झूठा है। सवाल, रसूलों में सबसे बड़ा दर्जा किस रसूल का है? जवाब, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों और रसूलों में सबसे बड़े दर्जे के और बुजुर्ग है। खुदा ताला के तो आप भी बंदे और ताबेदार हैं। हाँ, खुदा ताला के बाद आपका दर्जा सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सवाल, क़यामत का दिन किस दिन को कहते हैं? जवाब, क़यामत का दिन उस दिन को कहते हैं जिस दिन सारे आदमी और जानदार मारे जाएंगे और सारी दुनिया मिट जाएगी। पहाड़ रुई के गोलों की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूटकर गिर पड़ेंगे, यानी हर चीज़ टूट फूट कर मिट जाएगी। सवाल, तकदीर किसे कहते हैं? जवाब, हर बात और अच्छी बुरी चीज़ के लिए खुदा ताला के इल्म में एक अंदाज़ा मुकर्रर है, और हर चीज़ के पैदा करने से पहले खुदा ताला इसे जानता है, और खुदा ताला के इसी इल्म और अंदाजे को तकदीर कहते हैं। कोई अच्छी या बुरी बात खुदा ताला के इल्म और अंदाजे से बाहर नहीं। सवाल, ईमान मुफस्सिल में जिन 7 चीज़ों का जिक्र है, इनमें से अगर कोई दो एक बातों को ना माने तो क्या वह मुसलमान हो सकता है? जवाब, कभी नहीं, जब तक खुदा ताला की तौहीद और पैगंबर की पैगंबरी और अल्लाह ताला की किताब और खुदा ताला के फरिश्तों, खुदा और क़यामत के दिन और तकदीर और मरने के बाद जिंदा होने को ना माने, कभी मुसलमान नहीं हो सकता। सवाल, इन सब बातों का दिल से यकीन और ज़ुबान से इकरार करे, लेकिन नमाज ना पढ़े या ज़कात ना दे या रोज़ा ना रखे, हज ना करे, तो वह मुसलमान है या नहीं? जवाब, हाँ, मुसलमान तो है, लेकिन सख्त गुनाहगार और खुदा ताला का नाफरमान है। ऐसे आदमी को फासिक कहते हैं। ये लोग अपने गुनाहों की सज़ा पाकर आखिर में छुटकारा पाएंगे। सवाल, वज़ू में फ़र्ज कितने हैं? जवाब, वज़ू में 4 फ़र्ज है। माथे के बालों से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान से दूसरे कान तक मुँह धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना, दोनों पाँव गट्टों समेत धोना। इनमें से एक भी छूटा तो वज़ू नहीं होगा। सवाल, गुस्ल में कितने फ़र्ज है? जवाब, 3 फ़र्ज है। कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, सारे बदन पर पानी बहाना, बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए। सवाल,
किन जानवरों का झूठा पानी नापाक है? जवाब, कुत्ते, सुअर और शिकारी चौपाए का झूठा पानी नापाक है। इसी तरह बिल्ली जो चूहा या कोई और जानवर खाकर फौरन पानी पी ले, इसका झूठा पानी नापाक है। जिस आदमी ने शराब पी और फौरन पानी पी लिया, इसका झूठा भी नापाक है। सवाल, किन जानवरों का झूठा पानी पाक है? जवाब, आदमी और हलाल जानवरों का झूठा पानी पाक है, जैसे गाय, बकरी, कबूतर, फाख्ता, घोड़ा। सवाल, साहबी किसे कहते हैं? जवाब, साहबी उस आदमी को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो या आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हो और ईमान के ऊपर उसकी मौत हुई हो। सवाल, वली किसे कहते हैं? जवाब, जो मुसलमान खुदा ताला और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की ताबेदारी करे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और गुनाहों से बचता रहे, खुदा और रसूल की मोहब्बत दुनिया की सब चीज़ों की मोहब्बत से ज़्यादा रखता हो, तो वह खुदा के करीब और उसका प्यारा होता है, उसको वली कहते हैं। सवाल, क्या कोई सहाबी या वली किसी नबी के बराबर हो सकता है? जवाब, कभी नहीं। सहाबी या वली कितना भी बड़ा दर्जा रखता हो, किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। सवाल, किस तरह की नींद से वजू नहीं टूटता? जवाब, खड़े खड़े सो जाने या बगैर सहारा लगाए कर सो जाने या नमाज की किसी हालत में सोने से वजू नहीं टूटता, जैसे सजदे में सो गया या कायदा यानी बैठे हुए में सो गया तो वजू नहीं टूटेगा। सवाल, क्या कोई आदमी ऐसा भी है कि जो सो जाने से उसका वजू नहीं टूटता? जवाब, हाँ, नबियों का वजू नींद से नहीं टूटता, यह उनकी खुसूसियत और ख़ास फजीलत थी। सवाल, ज़मीन पर निजासत जैसे पेशाब या शराब वगैरह गिर जाए तो किस तरह पाक होगी? जवाब, ज़मीन जब सूख जाए और निजासत का असर, रंग, बू, मजा जाता रहे तो अपने आप पाक हो जाती है। सवाल, मकान या मस्जिद वगैरह में पक्की ईंटों या पत्थर के फर्श या दीवार पर नजासत लग जाए तो किस तरह पाक की जाए? जवाब, ईंट और पत्थर जो इमारत में लगे हुए हो, सूख जाने और नजासत का असर जाते रहने से अपने आप पाक हो जाते हैं। सवाल, मैयत की नमाज फ़र्ज है या वाजिब? जवाब, मैयत की नमाज फ़र्ज किफ़ाया है। अगर एक दो आदमी भी पढ़ ले तो सब के जुम्मे से फ़र्ज उतर जाएगा, और किसी ने भी नहीं पढ़ी तो सब गुनाहगार होंगे। सवाल, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला। सवाल, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का क्या नाम था? जवाब, हज़रत आमना। सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का क्या नाम था? जवाब, अबू तालिब।